Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid and you are on the channel of Medicare. So welcome back to this channel. So now this is our first day of starting the practicals. So in the previous lecture I have discussed all the theory of second prof of pharmacy. Now we are going to start the practicals of pharmacology and this is the first experiment of it. And the first experiment is about the introductions to the instruments which are used commonly in your pharmacology lab. And what are these instruments? So these are very simple. We use organ bath, kymograph and the power lab. So these three instruments are used in this experiment. So what are them? We will discuss them, we will draw the diagram of them, we will discuss how to use all of these instruments in your lab, we will discuss their uses, we will discuss how they are working here, why they are used in a pharmacology lab. So we will discuss all the things about that. So if you don't subscribe to my channel, then go press the subscribe button to get further more videos on all the practicals of pharmacology. And if you want to add another practical, you can definitely leave a comment for me. I will upload that particular practical for you. So thank you so much for subscribing to my channel. Now let's move toward the lecture. So as I have explained to you that in this lecture we are going to explain three instruments. So the first most important instrument is an organ bath, and you have to use this organ bath in your MPhil, in your PhD. So this is very important instrument. So that's why you have to understand it very quickly, and you have to understand or make the concept of it in your minds, so that it is going to helpful for you in your further studies. So what is the organ bath? It is very most commonly used instrument. So it is a chamber in which isolated organs and tissues can be administered with the drug or stimulated electrically in order to measure their function. What is mean by it? So let's see the diagram here first. So as I have drawn here, this is a diagram of an organ bath. So this, as you can see, a square chamber. So ये क्या है? It is a chamber in which what is going to put isolated organ or a tissue. किसका organ, किसका tissue? So let's suppose you have given a rabbit and they have said to you that you have to study that particular tissue of that rabbit. Like if I am giving you that you have to study the muscle tissue of this rabbit, you have to study it, you have to isolate it, and you have to apply any drug on it, and you will have to administrate, or you have to observe that how this drug is going to affect that tissue. You have to observe while the after applying this drug the muscle strength increases or the muscle strength decreases out. So to observe it you use organ bath. So this is a chamber, okay, and as you can see here the tube here. So this tube here, इसके अंदर this red shows a tissue. This is the isolated tissue. Let's suppose this tissue is a muscle tissue of that rabbit. I have dissected the rabbit, I have taken out this muscle tissue and I have placed it in this tube. Now I will apply the drug on it and see how this muscle or this tissue react after directing the drug. ठीक है. सो हम लोग नेचुरली क्या करते हैं, जब हम रैबिट को मेडिसिन देते हैं तो हम उसके मसल्स को बाहर निकाल के देखते नहीं हैं. ठीक है. हम फिर इस तरह मेजर नहीं कर सकते कि उसका मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है या कम हुई है. इस तरह इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें उससे टिश्यू को आइसोलेट करना होगा. अब जब भी हम किसी लेट्स सपोज कि मैंने एक रैबिट से टिश्यू को आइसोलेट किया, मैं अब उसको ऐसे खाली इन्वायरमेंट में नहीं प्लेस कर सकती. लाइक मैं टिश्यू को यहाँ रख दूँ, मैं ऐसे नहीं रख सकती. ठीक है. रूम टेम्परेचर पे या इस तरह के इन्वायरमेंट में आप उसको नहीं रख सकते हैं, उसके ऊपर जम्स लग सकते हैं. फिर जब आप उसके ऊपर ड्रग अप्लाई करेंगे तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो टिश्यू डेड हो जाएगा. हमने उस टिश्यू को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है कि उस टिश्यू को बिल्कुल वही हमने कंडीशंस देनी है जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर था.
ठीक है। हमने टेम्परेचर उसको बिल्कुल वही देना है जो हमारी बॉडी का है। हमने उसे बिल्कुल इस तरह फिजियोलॉजिकल स्टार्च सोल्यूशन से बिल्कुल आइसोटोनिक रखना है ताकि वो टिश्यू ज़िंदा रहे और फिर हम उसके ऊपर ड्रग के इफ़ेक्ट को स्टडी कर सकें। इसलिए ये ऑर्गन बाथ यूज़ होता है। सो आई थिंक कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये ऑर्गन बाथ है क्या और इसमें हम करने क्या वाले हैं। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि ऑर्गन बाथ इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ऑर्गन चैम्बर, जिसको आप ऑर्गन चैम्बर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक चैम्बर है। इन विच आइसोलेटेड टिश्यू बाथ भी आप इसको कह सकते हैं, गट बाथ भी आप कह सकते हैं क्योंकि हम एक आइसोलेटेड टिश्यू को इसके अंदर रख रहे हैं, या हम गट यानी रैबिट के जिनम के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, हम रैबिट के इंटेस्टाइन के टिश्यूज़ स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम इसको गट बाथ भी कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नाम से, तो आप कोई भी आपसे पूछ सकता है लाइक ऑर्गन चैम्बर क्या होता है, तो आपको पता हो, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक खड़े हो जाएं। तो आपको पता हो कि ऑर्गन चैम्बर भी ऑर्गन बाथ ही है, आइसोलेटेड टिश्यू बाथ भी ऑर्गन बाथ ही है, ठीक है। सो इसके डिफरेंट नाम्स आपने याद रखने हैं। द टिश्यू इन द ऑर्गन बाथ इज ऑक्सीजनेटेड विद द कार्बोजन एंड केप्ट इन द सोल्यूशन, दी सोल्यूशंस टायरल सोल्यूशंस एंड लैक्टेटेड रिंगर सोल्यूशंस, ठीक है। अब ये जो टिश्यू मैंने यहाँ पर प्लेस किया था इस ट्यूब के अंदर, मैंने इसको बिल्कुल वही कंडीशन अप्लाई करनी है जैसे ये मेरी बॉडी के अंदर है, ठीक है। यानी इस टिश्यू को हमने पता ही नहीं लगने देना कि वो रैबिट से बाहर निकल के आ चुका है, ठीक है। हमने बिल्कुल टिश्यू को ऐसे महसूस करवाना है कि वो अभी रैबिट के अंदर ही है, बिल्कुल वैसी कंडीशंस देनी है। सो अब एक टिश्यू को क्या क्या चाहिए होता है, लाइक एक टिश्यू होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके ब्लड फ्लो करता है उसके, तो ब्लड उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है, ब्लड उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। बिल्कुल वही की वही चीज़ें हमने अब इस टिश्यू को यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो हमने क्या प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। तो हमने यहाँ पर ये देखें वाटर रखा हुआ है, तो इस वाटर से इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि वाटर के अलावा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कार्बोजन जो है वो यूज़ करते हैं, जो उसको ऑक्सीजन देता है। इसी के साथ साथ हमने बिल्कुल उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम दो सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, टायराइड सॉल्यूशन और रिंगर सॉल्यूशंस। तो ये जो सॉल्यूशंस है वो हम इस ट्यूब के अंदर पुट करते हैं। और इन सॉल्यूशंस का काम क्या है, इस सॉल्यूशन की प्रिपरेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो ये सॉल्यूशंस है क्या, ये सॉल्यूशन बने होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक इनके अंदर सोडियम होगा, NaCl होगा, इनके अंदर आपको MgCl2 मिलेगा, इसके अंदर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट आपको इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर आपको कैल्शियम क्लोराइड, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो इस टिश्यू को चाहिए वो सारे इन दो सॉल्यूशंस के अंदर होंगे। तो ये टिश्यू की नेचर पे आप इन दो में से किसी एक सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब पर्पस क्या है, सो पर्पस इसका ये है कि आइसोलेटेड टिश्यू बाथ आर यूज्ड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ मसल टिश्यू फॉर सेवरल आवर्स। वही चीज़ आ गई है कि हमने उस टिश्यू को ज़िंदा रखना है काफ़ी लंबे अरसे के लिए, काफ़ी घंटों के लिए। सो अगर आप उसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे टिश्यू को, सो दैट कैन नॉट सर्वाइव इन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। सो यू हैव टू गिव दैट टिश्यू अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, अ पार्टिकुलर ऑक्सीजन सोर्स, a particular nutrient source, a particular temperature, so that all the conditions should be maintained. So after these conditions, this tissue can survive for the long time in control environment while physiological measurements are performed. और फिर उसके बाद जब आप उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट देते हैं, फिर आप उसके ऊपर फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक हमारा क्या फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कि हमने उसके ऊपर ड्रग अप्लाई करनी है। मैं इस मसल टिश्यू के ऊपर एट्रोपिन अप्लाई करके देखूंगी, मैं इसके ऊपर एपिनेफ्रीन अप्लाई करके देखूंगी, मैं इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने देखना है कि मसल्स के ऊपर होता क्या है। लाइक मैंने एट्रोपिन अप्लाई की, तो एट्रोपिन अप्लाई करने के बाद मसल टिश्यू उसके रिज़ल्ट में क्या शो करेगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी या उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी या क्या चीज़ होगी। सो वो चीज़ मैं फिर देखती हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गन बाथ। तो यहाँ पर यूजेस ऑफ ऑर्गन बाथ दिया हुआ है। ऑर्गन बाथ इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द नर्व मसल इंट्रैक्शन, कि एक नर्व और एक मसल्स का इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। लाइक जब भी नर्व्स आती हैं वो आपके मसल्स को मैसेज कर, यानी न्यूरॉन और जो मसल का आपस में इंट्रैक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपका निकोटीन उसके ऊपर जाके कैसे इफेक्ट करता है, आपका एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करके
करके क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सो ये जो निकोटीन और ये सारी चीज़ें हैं ये हम थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस करके आ चुके हैं। जब हमने डिस्कस किया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था तो तब हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। सो ऑर्गन बात में बिल्कुल यही चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये न्यूरॉन्स और मसल्स का जो आपस में रिलेशन है वो किस तरह का है। और दूसरा इसका यूज़ यह है कि इट इज़ यूज इन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल और स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। तो 3 तरह की मसल्स आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। स्मूथ मसल्स, हमारे कार्डियक मसल्स विच आर द मसल्स ऑफ आवर हार्ट, एंड आवर स्केलेटल मसल्स विच आर अटैच्ड विद आवर बोन्स एंड हेल्प इन आवर मूवमेंट्स. So these 3 muscles we have to study how they contract, how our heart muscles contract, how our smooth muscles contract, how our skeletal muscles contract. But in the organ bath we cannot put the tissue or a muscle of a human being. That's not possible. So we use the animals. We use rabbit, we use rat, we use mouse for it. So we will take the heart tissue of that rabbit and then we will see how it contracts. ठीक है. So we will take the smooth muscle of the rabbit and we see how it contract or relax. We will take the skeleton tissue of that rabbit and we will discuss how it is going to react after the application of a particular drug. So now before we are going to start the next kymograph, let's discuss what is the diagram of organ bath and we'll explain all of the diagram of the organ bath. So again I am returning back to the diagram of the organ bath because I have to explain it further to you. So as you can see I have given the some of the information about it, that it is a chamber which is given to you and this is red color is a tissue, whether it could be cardiac tissue, whether it could be skeleton tissue or the smooth tissue. So now what is going to hide here? First of all, let's discuss what are the names of the things which are used in the organ bath. Like this tube as you can see here, this tube is called as organ tube, which is called as organ tube. So in that tube your particular tissue is put in it. Next thing is the isolated tissue. This red color is showing the isolated tissue in it. This is a thread. Okay, so why this thread is used? Actually by this thread we bind the tissue with it so that we can help the tissue within it. Okay, so this thread is used for that, and this thread is attached with this is called as a rod, and this is a writing lever. So this lever is attached with this whole the thing is called as kymograph. We don't have studied the kymograph here, but I give a little bit of introduction about it. Actually it is a electrical machine. So this is a on off switch button of it, and this is a rotating drum on it, and on that rotating drum a paper is attached. So by this lever, when your skeletal muscle is moved, like when your skeletal muscles contract, so it show the movement in it. So this movement is sensed by this rod. This lever will rotate according to the movement, and this kind of graph will obtained on the kymograph paper. So that will show that your heart or your muscle is contract or relax. Like if the curve goes upward, it means the muscle is contracted out, and if this curve goes down, it's mean the muscle is going to relax. Okay, so whenever the muscles contract, curves goes higher. Whenever it relaxes, curves goes down. So that's why you can observe clearly see that now the muscle is in a contractile phase or in a relaxation phase. So this is called as kymograph drum, which is rotating up, and we can clearly see the results of it. Now this is a tube. Okay, this is not a thread, this is a thread, and this other tube which put it into the organ tube, this is called as aeration tube, and it is used to provide the oxygen to the muscle or to the tissue or to the muscle. Now this dark blue color, this is a physiological salt solution, PSS. Physiological salt solution is the 0.9% NaCl solution. So this is just a salt and water solution, and this is provide the isotonicity to the tissue. You know that all the tissues should be isotonic to our body.
Okay, so when they are isotonic, they will not going they should not be going to be in the hypertonic or hyper and hypotonic situation. So therefore this physiological saturation is put in it. Now in this water, in this chamber the water is held, so all of this light blue color is showing the water is here, and this water is at the temperature of 37 degree. So why this water is put in it? Actually this water is showing the tissue, or allowing the tissue to assume that this tissue is in the blood. So this water is acting as the same way as the blood is doing. सो इस तरह से आपके टिश्यू को बिल्कुल यही लगेगा कि वो ब्लड में ही है, उसको ब्लड मिल रहा है, क्योंकि उसको टेम्परेचर भी हम बिल्कुल उतना दे रहे हैं, हम उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको सारा कुछ दे रहे हैं। सो टिश्यू को बिल्कुल यही लगेगा कि वो रैबिट के अंदर ही है, ठीक है। So now for heating the water at the 37 degree centigrade, we provide the heater here, which is going to warm the water here, and we also attach a thermostat here. I have drawn a very little thermostat, but actually it is very big. Okay, so if the chamber is here, so very big kind of thermostat is placed here, but I have drawn it very short and little it. What is a thermostat? It is a device that is used to detect the temperature. Like it is going to detect now at that state what is the temperature here, after some time what is the temperature is going to change. So actually it is going to detect what is the temperature, and it is going to control the temperature, because temperature controlling is very important. We should maintain the temperature at the 37 degrees. If the temperature decreases, the tissue will affect it out. If the temperature increases, the tissue will affect it. So therefore the temperature should be at 37 degrees centigrade till the whole procedure. So therefore we have attached the thermostat here. So this is the stand of the organ bath. Now after that, what is this? Okay, so this is a stirrer, okay, which is going to stir the water, and it is going to be attached by a clamp holder. So ये holder इस तरह का होता है और इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टिर करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज अगर वाटर स्टिल खड़ा रहेगा तो आपको पता है कि वाटर के अंदर तो बहुत जल्दी माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। सो अगर माइक्रोब्स ग्रो हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस टिश्यू के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो इस टिश्यू के ऊपर भी माइक्रोब्स आ सकते हैं। इस वजह से हम उस वाटर को स्टिर करते रहते हैं ताकि माइक्रोब्स उसके ऊपर अपनी ग्रोथ ना कर सकें, ठीक है। सो ये हमने इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देख लिया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल कैसे करना है। लाइक किसी ने आपको कहा कि ऑर्गन बाथ स्टार्ट करें या इसका मेंटेन करें सारा कुछ, तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपने स्विच ऑन करना होगा। काइमोग्राफ का यहाँ पर कोई स्विच ऑन दिया हुआ होगा, आपने उसको स्विच ऑन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो काइमोग्राफ का ड्रम है इसके ऊपर पेपर अटैच कर देना है, जिसके ऊपर आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। वो पेपर अटैच कर दिया, लीवर को आपने सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन जो होगा वो आपने पुट करना है। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि हर नए टिश्यू के लिए आप फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन नया डालेंगे। लाइक मैंने पहले कार्डिक मसल डाला, उसके साथ ही मैंने सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर किसी और का लाइक रैट का स्केलेटल मसल रखना है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो मैं अब दूसरा फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन डालूंगी, पहले वाला यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। इसी तरह वाटर आपका गर्म होना चाहिए, हीटर टेम्परेचर बिल्कुल 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, स्टिरर आपका स्टार्ट हो चुका हुआ हो, और फिर आप लोगों ने इसके अंदर अपना टिश्यू हेल्ड करना है और इस प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। फिर टिश्यू हेल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर लीवर को देखना है कि ये पहले स्ट्रेट आए। लाइक अभी तो इसके अंदर मैंने कर्व शो की हुई है कि मैं ये बता चुकी हूँ कि ड्रग के अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, बट पहले आपने देखना है कि ये लाइन स्ट्रेट आए। ये इधर से देखें, ये पहले लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है, फिर उसके बाद कर्व्स आए हैं ना, लेकिन इससे पहले लाइन स्ट्रेट थी, तो सबसे पहले आपने ये लाइन स्ट्रेट लानी है। अब मैं करूँगी इसके ऊपर ड्रग अप्लाई। लाइक मैंने एक ड्रग अप्लाई की और उसके बाद मैंने ये एक कर्व एब्जॉर्ब की, ये वाली कर्व, ठीक है, आप देख रहे हैं ना। तो ये कर्व थोड़ी सी ऊपर की और फिर नीचे आ गई। इट्स मीन कि उस ड्रग ने थोड़ा सा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वापसी मसल रिलैक्स हो गए। फिर मैंने दोबारा ड्रग अप्लाई की और मेरे पास ये दूसरी कर्व आई।
अब जो सेकंड कर्व आई है इसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, मतलब ये ज़्यादा ऊपर गई है और फिर ज़्यादा नीचे आई है। इट्स मीन अब जो है मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद रिलैक्स हुआ है। देन मैंने दोबारा ड्रग को देखा तो उसमें इस तरह की कर्व्स आई। सो इस तरह की कर्व्स आपको मुसलसल मिलती रहेंगी और आप देख सकेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि ये डिक्लाइन रैपिडली नहीं होता है। इस कर्व के अंदर ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर फ़ौरन रिलैक्स हो गया कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया। एक्चुअली ये ग्राफ बहुत ही स्लो किस्म का आता है, ठीक है। सो मतलब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन वाला कर्व जो है वो आपको मिलता है। सो ये थी ऑर्गन बात और इसका सेटअप आपने किस तरह से करना है। और फिर आप जब टिश्यू पुट करेंगे और फिर ड्रग का इफेक्ट देखेंगे, फिर आप टिश्यू पुट करेंगे और ड्रग का इफेक्ट देखेंगे। सो इससे आप इसका जो स्टडी करनी होगी आपने उस टिश्यू की वो आप इजीली कर सकेंगे इस ऑर्गन बात के अंदर। अब हम चलते हैं जी कायमोग्राफ के ऊपर। कायमोग्राफ का हम एक्चुअली अच्छा खासा डिस्कस कर ही चुके हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है हम उनको देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कायमोग्राफ की। सो कायमोग्राफ इज़ अ डिवाइस दैट ड्रॉज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रल पोजीशन ओवर द टाइम विच स्पेशल एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम। सो क्या है, ये एक डिवाइस है जो ड्रॉ करेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस यहाँ तक ही लिख दें तो बड़ी बात है, ठीक है। आगे ये जो चीज़ें हैं ये ना ही लिखें। ये बताया हुआ है कि जो स्पेक्ट्रल एक्सिस है उस पर आपका टाइम शो हो रहा है और उसकी पोजीशन शो हो रही है, तो ये चीज़ ना ही लिखें। फिर इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग ड्रम, ठीक है। ये एक रोटेटिंग ड्रम होता है इसकी पार्ट्स वो बता रहा है। एक तो रोटेटिंग ड्रम है, दूसरा रैप विद अ शीट ऑफ पेपर, जो इसके ऊपर एक पेपर अटैच होता है, मैंने पहले भी बताया है। ऑन विच द स्टाइलस मूव बैक एंड फोर्थ। तो ये जो आपका ये आता है पेन, यहाँ पर इसको हम स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। ये स्टाइलस और उसके आगे पेन अटैच होता है जिससे फिर ये कर्व बनती है पेपर के ऊपर, ठीक है। सो स्टाइलस जो है बैक एंड फोर्थ मूव करता है जिसकी वजह से आपको इस तरह की कर्व मिलती है। अब कायमोग्राफ की भी ना आगे टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी, वीडियो कायमोग्राफ और डेप्थ कायमोग्राफ। तो ये उसकी बेस पे आ जाता है कि कुछ डिजिटल आ जाते हैं, कुछ मैनुअल अभी हैं, तो उनकी बेस के ऊपर इसकी 2 टाइप्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। सो इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने देख लिया। ऑन और ऑफ स्विच का बटन भी इसके ऊपर होता है, आप ऑन करेंगे और साथ ही जब मसल अटैच करेंगे तो ये पेन जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा जिसकी वजह से, और रोटेटिंग ड्रम तो आपका पहले ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा और आपने उसके ऊपर पेपर अटैच भी कर दिया है। सो पेन की वजह से उसके ऊपर कर्व्स आ जाएंगी और आप इजीली देख सकेंगे कि इस वक्त आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। कायमोग्राफ की यूजेस देख लेते हैं। सो इट जनरली यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ So it is used to study the effect of xenobiotics on the tissue preparation. So xenobiotics क्या चीज़ होती है, जैसे हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की थी कि जो बैक्टीरिया को मारते हैं। अब xenobiotics क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एनिमल लाइफ के लिए बिल्कुल ही फॉरेन है। मतलब एनिमल्स को वो नहीं दिए जाते, जैसे ड्रग है हम एनिमल्स को नहीं देते हैं। सो यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं xenobiotics को आपको समझाना चाहूँ कि हम जो इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग का एक एनिमल के ऊपर, सो ये यूज़ है हमारे कायमोग्राफ का, ठीक है। कायमोग्राफ हमें इस चीज़ में मदद कर रहा है ना कि हमने किसी ड्रग को स्टडी करना है किसी एनिमल के ऊपर। सो xenobiotics ये चीज़ आ जाती है कि वो सब्सटेंसेस जिनको हम स्टडी करते हैं एक एनिमल के ऊपर, ठीक है। तो उनको हम xenobiotics कहते हैं। लाइक मैंने एट्रोपिन का इफेक्ट देखा रैबिट के मसल के ऊपर, सो इसका मतलब एट्रोपिन उस रैबिट के लिए xenobiotics है, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है। आप सिंपल अगर xenobiotics की आपको नहीं समझ आए तो आप सिंपल इसकी जगह ये लिख दीजिए कि हम लोग इसके ज़रिए से कायमोग्राफ के ज़रिए से विद द हेल्प ऑफ कायमोग्राफ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन द एनिमल्स, ठीक है। सेकेंड यूज ऑफ इट इज़ दैट इट रिकॉर्ड्स द मोशन ऑफ फ्लोरेसेंस पार्टिकल्स। फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या वेसल्स या ऑर्गेनेल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उसका पाथ भी प्रेडिक्ट कर देता है, ठीक है। एक सेल है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज किस तरह से मूव करेंगी, उनका पाथ ये बता देगा हमें, ठीक है। एक ऑर्गन किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उनकी मोशन को रिकॉर्ड कर लेता है।
So third use of it used to record the muscles motion with the changes in the blood pressure. जैसे blood pressure change हुआ है, like जब भी blood pressure high होता है तो muscles contract हुए हुए होते हैं, जब भी blood pressure low होता है तो muscles relax हुए हुए होते हैं. So इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करना है या आपने स्टडी करना है तो आप काइमोग्राफ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है पावर लैब की. पावर लैब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है आजकल की मॉडर्न लैब्स के अंदर. अब ये पावर लैब है क्या, डायग्राम इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, इस तरह का ये पावर लैब होता है. इसके ऊपर डिफरेंट स्विचेस होते हैं, उनको डिस्कस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. ठीक है, सिंपल सा इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट है इधर कि इट कॉमनली यूज इन द फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज. यानी जितनी भी लेबॉर्ट्री है आपकी, चाहे फिजियोलॉजी की लेबॉर्ट्री है या फार्माकोलॉजी की लेबॉर्ट्री है, आप इन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस पावर लैब को लाजमी यूज़ करेंगे. ये है क्या चीज़. ठीक है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड और एनालाइज द फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स फ्रॉम द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आइसोलेटेड ऑर्गन्स. ठीक है, एक आइसोलेटेड ऑर्गन है, चाहे वो ह्यूमन से है या एनिमल से है, वो सिग्नल सेंड करता है. ठीक है, और वो किस तरह के सिग्नल, लाइक अब द हार्ट का मसल है, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. लाइक आपने देखा होगा ना कि जो कार्डियक मसल्स के पेशेंट्स हैं उनके साथ कुछ इस तरह की मशीनरी अटैच करते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर उनकी हार्ट बीट आ जाती है. उनकी हार्ट बीट शो हो रही होती है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और जब वो हार्ट बीट स्ट्रेट हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं सॉरी हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सके. तो वो कैसे आ रहा होता है, वो इसी पावर लैब की वजह से आ रहा होता है. ठीक है, सो जो ह्यूमन के हार्ट है उसमें से जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं इस पावर लैब को. वो पावर लैब जो है उन सिग्नल्स को करता है एनालाइज, और उनको एनालाइज करके वो जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर वो कर्व शो करता है, जिससे हमें पता लगता है अच्छा अब पेशेंट का हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा अब रिलैक्स कर रहा है, अब ये कर रहा है. ठीक है, तो हमें वो पता लग जाता है. जब वो लाइन स्ट्रेट होती है तो हमें पता लगता है ठीक है हार्ट अब बिल्कुल पंप करना या कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल बंद कर चुका है. सो इट्स मीन कि पेशेंट की डेथ हो गई है. सो ये पावर लैब इस चीज़ में यूज़ होता है. सो जिस तरह हम ह्यूमंस का स्टडी करते हैं इसी तरह हम एनिमल्स का भी स्टडी करते हैं इसी पावर लैब की वजह से. तो ये होता क्या है, ये एक सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द माइक्रोसॉफ्ट विंडो. एक्चुअली ये क्या है, ये इस तरह का है ना, ये अटैच होता है आपके कंप्यूटर के साथ. ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जिस कंप्यूटर के ऊपर ह्यूमन की हार्ट बीट आ रही होती है उस कंप्यूटर के साथ ये होता है अटैच. तो ये उसके लिए एक इनपुट डिवाइस है. सो जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक और जिसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं, तो ये उसके साथ अटैच है यूजिंग अ USB केबल. सो USB केबल से ये दोनों चीज़ें अटैच है. चाहे आप इसकी डायग्राम में यहाँ पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर बना दें और इन दोनों को एक USB डिवाइस या केबल से कनेक्ट कर दें. सो यू विल डिस्कस दैट हाउ दे आर कनेक्टेड. देन द लैब चार्ट सॉफ्टवेयर. अच्छा, अब क्या होगा कि वो जो कंप्यूटर होगा वो आम से कंप्यूटर नहीं होता. ठीक है, अब उस कंप्यूटर के अंदर लैब चार्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर ही आप जो है ना वो ग्राफ वगैरह देखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा. आपको उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसको हम कहते हैं लैब चार्ट सॉफ्टवेयर. जब ये सॉफ्टवेयर होगा ना तो फिर आप उसके ज़रिए से इजीली जो है वो देख सकेंगे कंप्यूटर के ऊपर. विच सप्लाइज विद द पावर लैब एंड प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डिंग डिस्प्ले और एनालाइजिंग द फंक्शन. तो इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आपको सारी चीज़ें जो फंक्शन हैं इसके डिस्प्ले होने का फंक्शन या एनालाइज करने का फंक्शन वो आप देख सकेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है कि बिफोर 1998 से पहले इसको हम मैक लैब कहते थे. ठीक है, मैक लैब कहते थे, मैक मीन कंप्यूटर. सो फिर अब के मॉडर्न दौर में इसका नाम पावर लैब रख दिया है. ठीक है, अब इसके यूजेस वगैरह के इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग. और आगे मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ना जाने से पहले मैंने कहा कि ये चीज़ आपको समझा दूँ. ये है पैच क्लैम्प टेक्निक. इसमें ये क्या होता है कि ये मसल्स का सेल है. ठीक है, जैसे मायोसाइट्स है, ये नहीं मसल का सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है. ठीक है, और इसको मैंने ये इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया है. ये इलेक्ट्रोड अटैच हुआ है और ये एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर ये येलो कलर का लिक्विड फिल है. तो इससे हम मसल सेल को देख सकते हैं. तो ये होता है पैच क्लैम्प टेक्निक. ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिससे हम लोग देखते थे कि मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं. ठीक है, हम माइक्रोस्कोप लेते थे और उससे डिटेक्ट करते थे कि मसल इस वक्त क्या कर रहा है.
बट अब तो क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं तो अब तो ऑर्गन बाथ इस चीज़ के लिए आ चुका है, बट पहले ये वाली पैच क्लैम्प टेक्निक यूज़ होती थी। ठीक है, तो अब हम पावर लैब के ऊपर दोबारा आते हैं और उसकी यूजेस हम देख रहे थे, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। अच्छा, ये यूजेस लिखे हुए हैं पावर लैब के, डैट द प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिश्यू, यानी जितने भी आपके कार्डिक मसल है आपने उसकी कंट्रैक्टिबिलिटी को देखना है तो आप यू कैन यूज़ पावर लैब विद इट, so that you can clearly observe the working of it. Now you can attach the respiratory tissue of the animal and you can see the working of it कि respiration system कैसा जा रहा है रैबिट के अंदर, आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वर्किंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वर्किंग आप नोट कर सकते हैं। It used to record and analyze the physiological signals from the human being and the animals isolated organs। तो जितने भी सिग्नल्स आपके ह्यूमन से आ रहे हैं ये उनको रिकॉर्ड करता है, ये उनको एनालाइज करता है और फिर ये सिग्नल्स की फॉर्म में ये ग्राफ के ऊपर या उस कंप्यूटर के ऊपर आपको शो करता है। सो ये इसके यूजेस आ गए हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आपको पसंद आई और आपको कंसेप्ट सारे मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत होती है इसके पीछे। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो कि हम डिस्कस करेंगे ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ड्रग्स कितने तरीक़ों से दी जाती है, लाइक ओरल दी जा रही है या सबलिंगुअल दी जा रही है। सो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।